خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ دیہی مقامات پر موجود ریت کے ٹیلوں سے دھڑلے سے چرائی جا رہی ہے ریت، مگر متعلقہ انتظامیہ خواب غفلت نے حکومت و انتظامیہ کا بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے مالی نقصان، عوام کی بھی کاٹے جانے لگی ہے جیب، شہریان میں بے چینی۔ ریاستی حکومت نے کیا کورونا کے مہلوکین کے ورثاء کو 50,000 روپے مالی امداد دینے کا اعلان، مگر درخواست دہی میں متعلقہ شہریان کو آ رہی ہے پریشانی۔ شہریان کی سہولت کے لیے MP امتیاز علی نے شروع کیا ہیلپ کاؤنٹر، متعلقین سے استفادہ کی اپیل۔ مسلمانوں کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ریزرویشن اس کا واحد حل، مختلف تنظیموں کی جانب سے الگ الگ چلائی جا رہی ہے تحریک، مگر سب بے اثر۔ ریزرویشن معاملے پر سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت۔ اور گھاٹی دواخانے میں نوکری کا جھانسا دے کر بے روزگار نوجوان کو ٹھگنے کا ایک اور معاملہ آیا منظر عام پر، رقم کے عوض بوگس اپائنٹمنٹ لیٹر تھمانے والا جعلساز پولیس کے شکنجے میں۔ اس معاملے میں ایک بڑے ریکٹ کے ملوث ہونے کا پولیس کو ہے شک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تعلقہ سلوڑ کے ساؤکھیڑا سے گزر رہی چانا ندی سے بھی بڑے پیمانے پر ریت کی کالا بازاری کا گورکھ دھندا جاری ہے، مگر اس معاملے میں متعلقہ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ ناظرین، ریت پٹے حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، مگر نامعلوم وجوہات کے سبب گزشتہ کئی سالوں سے ریت کے ٹیلوں کی نیلامی نہیں ہوئی ہے اور ریت کی نکاسی پر پابندی عائد ہے، جس سے حکومت کا بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے، تو دوسری طرف متعلقہ افسران اور انتظامیہ کی اندیکھی کے سبب ریت کے ٹیلوں سے غیر قانونی طریقے سے روزانہ سینکڑوں براس ریت کی نکاسی جاری ہے، اور یہ گورکھ دھندا رات کے اندھیروں میں کیا جاتا ہے اور ٹیلوں سے چرائی گئی ریت مختلف علاقوں میں ڈمپ کر کے مہنگے داموں پر اسے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے، تو دوسری طرف عوام کا بڑے پیمانے پر معاشی استحصال ہو رہا ہے اور تعمیری کاموں کا بجٹ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے ساؤکھیڑا سے گزر رہی چانا ندی کے کنارے موجود ریت کے ٹیلوں سے بھی غیر قانونی ریت نکاسی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ ضلع و تحصیل انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہیوں کے سبب ریت چرانے والوں نے اس ندی میں جگہ جگہ گڑھے کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اطراف کی بستیوں میں مستقبل قریب میں پانی کی شدید قلت ہو جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس غیر قانونی کاروبار پر فوری روک لگائی جائے۔ غیر قانونی طریقے سے ریت کی مال برداری کرنے والی گاڑیاں محصول انتظامیہ نے ضبط کر لی۔ یہ کارروائی متعلقہ گنگا پور کے آسے گاؤں میں انجام دی گئی۔ آسے گاؤں علاقے سے گزر رہی ندی کے کنارے سے کچھ لوگ گزشتہ کئی دنوں سے غیر قانونی طریقے سے ریت چرا کر قدرتی ذخائر کا تیزی سے صفایا کر رہے ہیں، لہٰذا ریت مافیاؤں کی سرگرمیوں پر شکنجہ کسنے کے لیے ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے خصوصی دستہ تشکیل دے رکھا ہے۔ تعلقہ گنگا پور کے تحصیلدار ستیش سونی نے بھی ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر فلائنگ اسکواڈ بنائے ہیں اور ریت کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ تحصیل انتظامیہ کر رہا ہے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تحصیل انتظامیہ کی اندیکھی کے سبب تعلقہ گنگا پور کے آسے گاؤں ریت پٹے سے بے طریق ریت چرائی جا رہی ہے، مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ ضلع کلکٹر سنیل چوہان کے تشکیل کردہ اسکواڈ نے آسے گاؤں علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ہائیوا ٹرک اور ایک ٹیمپو ضبط کیا، جس کے سبب تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ کورونا کے سبب جاں بحق ہونے والے شہریان کے ورثاء کو ریاستی حکومت کی جانب سے مالی امداد دی جا رہی ہے، جس کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہے، لہٰذا متاثرہ خاندانوں کی سہولت کے لیے MP امتیاز علی کے رابطہ آفس پر ہیلپ کاؤنٹر شروع کیا گیا، جہاں اب تک 535 ورثاء کی درخواستیں آن لائن داخل کی جا چکی ہے۔ یہ اطلاع MP دفتر سے موصول ہوئی ہے۔
एम पी दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक रियासती हुकूमत ने कोरोना के सबब जा बहक होने वाले शहरियान के वर्सा को माली इमदाद फराहम की जा रही है, मगर इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मंगवाई जा रही है और बहुत से शहरियान ऑनलाइन के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ न होने के सबब उन्हें दरख्वास्त दाखिल करने में दुश्वारियाँ आ रही है। लिहाजा उनकी सहूलत के लिए एम पी इम्तियाज़ जलील ने अपने राब्ता ऑफिस पर हेल्प काउंटर शुरू किया है, जहाँ कमोबेश 10 अफराद इस काम पर मामूर है। 2 अफराद दरकार दस्तावेज़ात की जांच कर रहे हैं तो 8 अफराद दस्तावेज़ात की स्कैनिंग करके ये मालूमात ऑनलाइन दरख्वास्त के साथ जोड़ रहे हैं और अब तक 535 वर्सा की दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं, जबकि 2280 शहरियान ने फ़ोन पर राब्ता कायम करके मालूमात हासिल की है। प्रेस रिलीज़ में बताया जा रहा है कि दरख्वास्त के साथ कोरोना के सबब जा बहक होने वाले शहरी का आधार कार्ड, दरख्वास्त गुजार का आधार कार्ड, महलूक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट, दरख्वास्त गुजार के आधार कार्ड से लिंक किए गए बैंक अकाउंट का नंबर, दरख्वास्त गुजार का कैंसिल किया हुआ चेक, मौत कोरोना के सबब हुई है इस ताल्लुक से मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर ये सर्टिफिकेट ना हो तो RT-PCR रिपोर्ट, CT स्कैन या दीगर ऐसा कोई दस्तावेज़ जिससे ये साबित हो कि महलूक की मौत कोरोना से हुई है। मुतालिका शहरियान ने MP इम्तियाज़ जलील से अपील की है कि ऑनलाइन दरख्वास्त दही के लिए कायम करदा हेल्प काउंटर से रुजू करें और हुकूमत की जानिब से दी जा रही माली इमदाद हासिल करें। मुस्लिम रिजर्वेशन तहरीक कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वक्त सिल्लोड तहसील ऑफिस पहुंचा और मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने के मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। मुतालिका कमेटी के ज़िम्मेदारों ने मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। इस वक्त ने मुल्तानी सद्दाम हुसैन, हमीद खान, मुतालिका समिति के ताल्लुका सदर वसीम पठान, शहर सदर मोहसिन बागबान, नायब शहर सदर निसार शाह मिर्ज़ा, सोहेल बेग, वसीम बागबान और दीगर शामिल थे। मुस्लिम समाजाची शालेय, शैक्षणिक, आर्थिक मागास परिस्थिती लक्षात घेता मागील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने जे 5% आरक्षण जाहीर केले होते, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमिटीच्या अहवालानुसार तो मागील सरकारने फेटाळून लावला होता। तरी आता केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला अधिकार दिलेला आहे की जो समाज तुमच्या राज्यामध्ये मागासलेला आहे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे व मुंबई हायकोर्टाने पण सांगितलेलं आहे की मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण दिलं पाहिजे। तर आमची हेच मागणी आहे। महाराष्ट्र मुस्लिम समन्वय संघटनेच्या माध्यमातून आज सर्व महाराष्ट्रातील तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना या निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येते की आपल्या होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये कायदेशीररित्या हा विषय जो मांडला गेला पाहिजे आणि सर्वसंमतीने हा जो बिल आहे मुस्लिम आरक्षणाचा तो पास झाला पाहिजे, इतकीच आमची विनंती आहे। शहर के अहम बाजारों में कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने 30 से ज़ायद इंक्रोचमेंट्स हटा दिए। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ अंजाम दी गई। नाजरीन, साल 2012 में इस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भावकर ने शहर के DP प्लान पर अमल करते हुए 29 रास्तों पर इंहदामी कार्रवाई की थी, जिसके बाद रास्ते कुशादा हो गए थे, मगर मुतालिका इंतज़ामिया वक्त पर वहां पुख्ता सड़क तामीर नहीं करवा सका। साथ ही रास्तों में हायल बिजली के खंभे भी जो के तू आज भी बरकरार हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर इन इलाकों में कई ताजिरों और ठेले वालों ने नाजायज़ कब्जे कर लिए थे, जिसकी वजह से रास्ते कुशादा होने के बावजूद तंगदामनी की शिकायत करने लगे और इन इलाकों में ट्रैफिक जैम रहने लगा। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने बुड्डी लैन, नेहरू भवन, औरंगपुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक में रुकावट बन रहे गाजिबाना कब्जे हटा दिए। नेहरू भवन से मुत्तसिल 3 लोहे की टपरियाँ मुताल्लिका मुलाजिमीन ने जब्त कर ली। इसी तरह औरंगपुरा मार्केट से करीब 30 बाय 30 रकबे ज़मीन पर एक फल फरोश की जानिब से बनाया गया चबूतरा तोड़ दिया गया। इसके अलावा इस इलाके से एक 5 बाय 7 की टपरी भी हटा दी गई। कुम्हारवाड़ा रोड पर सड़क तक आ गए सभी नाजायज़ कब्जात भी म्यूनसिपल अमले ने निकाल दिए।
महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे से अंजलि टाकिस तक रास्ते के किनारे किए गए 7 कब्ज़ात भी हटा दिए गए। गणेश साबूदाना वड़ा नामी दुकान मालिक की 3 हाथ गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी जब्त कर ली। प्रशांत फोटो स्टूडियो, भारतीय कंगन स्टोर्स, आरवी फैमिली रेस्टोरेंट और आमदार अमृतालय के गाजिबाना कब्जे भी हटा दिए गए। गुलमंडी, रंगरेज गली और सिटी चौक इलाकों में सड़क पर बनाए गए चबूतरे भी म्यूनिसिपल अमले ने तोड़ दिए। आलमगीर कॉलोनी इलाके में मौजूद डंपिंग ग्राउंड का कचरा साफ करके वहां मिशन खाम रिस्टोरेशन का बोर्ड आवेजा किया गया और साकिनान को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया गया। वाज़ेह है कि जोन नंबर 3 के वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी की रहनुमाई में सफाई इंस्पेक्टर मोइन कादरी, लियाकत अली, रेड्डी कंपनी के अजमल कुरैशी और सफाई जवान अजीम पठान रेड्डी कंपनी के सुपरवाइजर सुमित जाधव जोन नंबर 3 की हुदूद में खुसूसी सफाई मुहिम चला रहे हैं और गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ इलाकों में डाली गई कचरा कुंडियाँ और डंपिंग ग्राउंड ख़त्म करके शहरियान को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का पैगाम दे रहे हैं, जिसके तहत आलमगीर कॉलोनी इलाके में मौजूद डंपिंग ग्राउंड पर जमा शुदा कचरे के अंदार उठवाकर वहाँ खूबसूरत रंगोली बनाई गई और मिशन खाम रिवर रिस्टोरेशन का बोर्ड वहाँ आवेजा किया गया। इलाके के साकिनान को ये पैगाम दिया गया कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से अपने अतराफ सफाई का खास ख्याल रखें। रास्तों और चौराहों पर कचरा फेंकने की बजाय घंटा गाड़ी के मुलाजिमीन के पास कचरा जमा करवाएं। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ किए गए वादे तोड़ने वाले म्यूनिसिपल अफसरान की मजम्मत में 27 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फ्रांसलिन स्कूल से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर तक पैदल मार्च किया जाएगा। ये इत्तला एडवोकेट अभय टकसाल ने दी है। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उन्हें एक तहरीरी मकतूब देते हुए ये वादा किया था कि स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया अपने वादे पर कायम नहीं रहा और फ्रांसलिन स्कूल की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल कारोबार करने वाले खाना बदोश स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और न सिर्फ उनका घरेलू सामान जब्त करके बेआसरा किया गया बल्कि उनका कारोबारी सामान भी जब्त कर लिया गया। लिहाजा म्यूनिसिपल अफसरान की इस वादा खिलाफी की मजम्मत में 27 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फ्रांसलिन स्कूल से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर तक पैदल मार्च किया जाएगा। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास आठवले के जन्मदिन पर आरपीआई के ताल्लुका सेक्रेटरी की रहनुमाई में पार्टी वर्कर्स ने रूरल हॉस्पिटल पालम में जेर इलाज मरीजों में फल तकसीम किए। वाज़ेह है कि सियासी कायदीन की सालगिरह के मौके पर पार्टी वर्कर्स की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तालुका पालम में भी आरपीआई वर्कर्स ने अपने कायद मरकजी वजीर ममलिकत रामदास आठवले के जन्मदिन पर रूरल हॉस्पिटल पालम ने ज़ेरे इलाज मरीजों में फल तकसीम किए और उनकी अयादत करते हुए अपने कायद की लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर आरपीआई के ज़िला सदर निरुत्ती हत्ती अंबीरे, गौतम सिरपुरकर, मोहम्मद खान पठान, बालाजी पौड़, माधव हत्ती अंबीरे, मारुति पौड़, दयानंद कदम और दीगर मौजूद थे। कोरोना से मुतासिर एक मुअम्मर खातून को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, मगर इलाज के दौरान इस खातून की सोने की अंगूठी और 6000 नकद रकम नामालूम चोरों ने उड़ा लिए। तफसीलात के मुताबिक भरत कोंडीराम इंदौरे की 70 साला दादी की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 34 में दाखिल किया गया। दाखिल करते वक्त मरीज़ा की उंगली पर सूजन आने के सबब उनके हाथ में मौजूद 5 ग्राम वजनी सोने की अंगूठी उतारी ना जा सकी। दौरान इलाज 22 दिसंबर को स्टाफ नर्स ने मरीज़ा की उंगली से अंगूठी निकाल कर उसे दे दी, जो मरीज़ा ने उनके पास मौजूद थैली में रख ली थी, जिसमें 6000 रुपये नकद भी मौजूद थे। इस रात 4 बजे के करीब एक वार्ड बॉय उनके करीब आया और लाइट बंद करके चला गया। सुबह नाश्ता करने के बाद जब मरीज़ा ने थैली में अंगूठी तलाश की तो अंगूठी गायब थी। साथ ही थैली में रखे 6000 रुपये भी मरीज़ा को नहीं मिले। इस मामले में बेगमपुरा पुलिस ने नामालूम चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब घाटी दवाखाने में भी चोरी की वारदातें पेश आने से मरीज़ और उनके रिश्तेदारों में बेचैनी पाई जा रही है। अहम बात तो ये है कि कोरोना वार्ड्स में सिवाय स्टाफ और मरीजों के किसी को दाखिला नहीं दिया जाता, तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस 70 साला मरीज़ा की अंगूठी और रकम किसने चुराई है। ये एक तहक़ीक़ तलब मौजू है। घाटी दवाखाने में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर एक गरीब नौजवान से 80,000 रुपये ऐड कर उसे जाली अपॉइंटमेंट लेटर थमाने वाले एक जालसाज को बेगमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस जालसाज ने पठान साबिर खान नासिर खान नामी एक नौजवान को घाटी दवाखाने में क्लास 4 मुलाजिम की हैसियत से नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे मरहलावार 80,000 रुपये ऐंठ लिए और उसे एक जाली अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया और साथ ही उसे ये भी बताया कि वो तकर्रुराती लेटर फ़िलहाल किसी को ना बताए। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी साबिर को जब रुजू नहीं किया गया तो उसने तहक़ीक़ात शुरू की, जिस पर उसके साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ, जिसकी शिकायत उसने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से की, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि इस जालसाज ने दिगर कई अफराद को भी इस तरह का बोगस तकर्रुरनामा देकर चूना लगाया होगा। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट होने का भी इम्कान बताया जा रहा है। पुलिस इस नज़रिए से भी इस मामले की जांच कर रही है। इस ज़िम्न में मज़ीद मालूमात असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात ने MCN को फराहम की। यातील फिर्यादी नामी पठाण साबिर खान नासिर खान वय वर्ष 28 राहणार असेपिया कॉलनी यास वाडबायमध्ये कामास लावतो घाटीमध्ये असे सांगून यातील जो आरोपी आहे अब्दुल नवेद अब्दुल रशीद शेख वय वर्ष 39 राहणार सिल्क मिल्क कॉलनी यांनी ह्या फिर्यादीकडून वेळोवेळी 21,000 40,000 20,000 करून 80,000 घेतले की तुला परमनंट कामाला लावतो म्हणून आणि वेळोवेळी त्यांनी अपॉइंटमेंट लेटर दिले। सुरुवातीचे त्याला एक 25/5/21 रोजी दिलं, नंतर तो बोलला थांब अजून काय वेकन्सीज नाहीत। परत त्यांनी त्याला 13/10/21 रोजी एक अपॉइंटमेंट लेटर दिलं, तरी त्याला थांबवलं आणि नंतरचं जे अपॉइंटमेंट लेटर त्यांनी दिलं त्याला 21/10/21 रोजी, तर तो ते अपॉइंटमेंट लेटर घेऊन HOD डिपार्टमेंट पॅथो येथे गेला असता त्याच्या असं लक्षात आलं की इथे तिथले HODने सांगितले की असे काय कुठे इथे आमच्यावर अपॉइंटमेंट नाही आहे, काही नाही। त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पुढे मग हा माननीय पोलीस आयुक्त CP साहेब यांच्या नावाने अर्ज करून अशी फसवणूक झालेली आहे अशा प्रकारचं एक आशयाचं अर्ज दिल्यानंतर तो चौकशीसाठी बेगमपुरा पोलीस स्टेशनला आल्या। त्याची इथले अधिकारी यांनी PSI भालेराव व पोलीस निरीक्षक तसेच मार्गदर्शनाखाली त्यांनी त्याचा तपास केला। त्यामध्ये आरोपीला त्यांनी अरेस्ट केलं। 2 दिवसाची हा तो गुन्हा आहे तो 23 तारखेला दाखल करून घेण्यात आला अर्जावरून आणि 2 दिवसाची PC मिळालेली आहे। तसेच अशाच प्रकारचे काही गुन्हे ह्या किंवा आमिष या जो ह्याच्यातले आरोपी ह्याच्याकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। तर आम्ही असं आवाहन करतो की अशा प्रकारचे काही कोणाची फसवणूक झाली असेल आमिष दाखवून तर पुलिस स्टेशनला संपर्क साधावा। हथियारों से लैस होकर डाका डालने की घात में बैठे 5 डकैतों को सिंदखेड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फाजिल अदालत ने उन्हें 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। ये इत्तला API भालचंद तिड़के ने दी है। दिनांक 20/12/2021 रोजी रात्र गस्तीत असताना आमचे कर्मचारी अधिकारी यांच्या लक्षात आलं की एक गाडी आहे आणि ती गाडी रस्त्यावर थांबवून लूटमारीचा प्रयत्न करण्याची तयारीत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून सर्व पोलीस स्टेशनचा स्टाफ आम्ही स्वतः जाऊन सदर ऑपरेशन राबवलं। त्यामध्ये आम्हाला 5 इसम भेटून आले। त्या सर्व इसमाची पोलीस स्टेशनला गुन्हा नंबर 166/2021 दाखल करण्यात आला। सदर गुन्ह्यामध्ये कसून चौकशी केली असता सदर गुन्ह्यातील आरोपिताने माहूर येथील 3, मागाव पोलीस स्टेशन जिल्हा यवतमाळ येथील 3, तसेच आर्णी येथील 1 आणि अनसिंग येथील 1 तसेच आदिलाबाद येथील 2 चोऱ्या केल्याचे उघडकीस आलेले आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी हे आदिलाबाद आणि महाराष्ट्रातील यवतमाळ, नांदेड आणि वाशिम या जिल्ह्यातील लोकांच्या सहकार्याने चोऱ्या करत असून त्या सीमावर्ती भागामध्ये धुमाकूळ घालणारी टोळी आहे। त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला 10 गुन्ह्याचा उघाडा झालेला आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आम्हाला आमच्या नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री निसार तांबोळी सर, नांदेड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री प्रमोद शेवाळे सर, तसेच आमच्या विभागाचे भोकर विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक श्री विजय कबाडे सर, माहूर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विजय जाधव सर यांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे। तसेच तपासकामी सायबर सेल आणि स्थानिक गुन्हे शाखा यांचं सुद्धा आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास अद्याप चालू आहे। त्यांच्याकडून आरोपिताकडून आणखी सखोल चौकशी करून जे काही गुन्हे उघडकीला येतील संबंधित पोलीस स्टेशनला त्याबाबतची माहिती देण्यात येईल।
तालुका फुलमरी के पीपल गागदेव नामी मुकाम से गैर कानूनी तरीके से देसी शराब का कारोबार करने वाले एक शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम योगेश जगन्नाथ जाधव बताया जा रहा है। पुलिस को खुफिया जराये से मालूमात मिली थी कि मज़कूरा शख्स गागदेव नामी मकाम पर देसी शराब फरोख्त कर रहा है, जिस पर पुलिस ने वहां छापा मारा और योगेश को हिरासत में ले लिया। इसके कब्जे से देसी शराब की 48 बोतलें बरामद की गयी, जिनकी कीमत 3,840 रुपये बताई जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस नायक लहाने व संजय चौहान ने इंस्पेक्टर अशोक मुदिराज की रहनुमाई में अंजाम दी। शादी तय हो जाने के बाद अपने मंगेतर के साथ लिव इन रिलेशन के तहत जिंदगी गुजारने वाले एक शख्स ने जब दूसरी लड़की के साथ बिहार रचा लिया तो मुतासिरा दोशीज़ा ने अपने बेवफा मंगेतर के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासिरा दोशीज़ा के बेवफा मंगेतर का नाम गोविंद चंद्राधन घोड़े बताया जा रहा है। पुलिस जरा के मुताबिक मनीषा बाड़ा साहब बल्लार नामी दोशीज़ा ने शिकायत दर्ज करवाई कि तालीम हासिल करने की गरज से वो औरंगाबाद आई थी। इसकी शादी गोविंद से तय हो गई थी, इसलिए वो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप के तहत पार्वती नगर इलाके में जून 2020 से क़याम पजीर थे। मनीषा के साथ शादी तय हो जाने के बाद भी गोविंद ने उसे अंधेरे में रखते हुए मांजलगांव की एक दोशीज़ा के साथ चोरी छुपे अपना बिहार रचा लिया। मनीषा को जब इस बात का पता चला तो वो सीधे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने बेवफा मंगेतर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात डिप्टी इंस्पेक्टर राठौड़ कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। देही मकामात पर मौजूद रेत के टीलों से धड़ल्ले से चुराई जा रही है रेत, मगर मुतालिका इंतजामिया ख्वाब गफलत ने हुकूमत में इंतजामिया का बड़े पैमाने पर हो रहा है माली नुकसान, अवाम की भी काटे जाने लगी है जेब, शहरियान में बेचैनी। रियासती हुकूमत ने किया कोरोना के महलूकीन के वर्सा को 50,000 रुपये माली इमदाद देने का ऐलान, मगर दरख्वास्त दही में मुतालिका शहरियान को आ रही है परेशानी। शहरियान की सहूलत के लिए MP इम्तियाज़ अली ने शुरू किया हेल्प काउंटर, मुतालिकीन से इस्तिफादा की अपील। मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए रिजर्वेशन इसका वाहिद हल। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से अलग अलग चलाई जा रही है तहरीक, मगर सब बेअसर। रिजर्वेशन मामले पर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत। और घाटी दवाखाने में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार नौजवान को ठगने का एक और मामला आया मंजर आम पर। रकम के एवज बोगस अपॉइंटमेंट लेटर थमाने वाला जालसाज पुलिस के शिकंजे में। इस मामले में एक बड़े रैकेट के मुलविस होने का पुलिस को है शक। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।